Friends, as Mr. Sharma has told you, the purpose of my talking today is definitely that we should know what the problem is, which most of us, frankly speaking, we do not know. First, I'll start how the Kashmir problem started. As you know, in 1947, when the partition took place, and immediately after the partition, Raja Hari Singh of Kashmir, who was king, he was supposed to decide which way he has to go, because all the princely states, princes, they had two options: either to go with India or not Pakistan, but to declare independence. If you go to the history, the actual thing was they should decide this way or that way, that they can declare their independence also. But they also knew that once they declared their independence, then they need so many things. So most of the states, they decided to go with India, except few states, as you know, Hyderabad, etc., which later on they merged with that. Raja Hari Singh was one of them who wanted to be independent. And he didn't agree what he was told to. He was told to be with India. And you know what happened? When he was in between, in the meantime, when this independence was declared, then Pakistan sent their troops along with Qabilis. Not only that Qabilis only came, the Qabilis under the garb of military from Pakistan, they came to India, Kashmir part, and they grabbed it and they started grabbing it. In the meantime, when this information reached to India, Delhi, Jawaharlal Nehru, he talked, and especially Sardar Vallabhbhai Patel, that we should immediately send over forces. But Lord Mountbatten was of the view that till Raja Hari Singh do not sign the treaty that he is ready to come into India, we will not send any forces. Ultimately, in the meantime, they captured the area which is now called POK, that is a Pak occupied Kashmir. So then by that time, then special embassy was sent to Raja, who was that time, he was in Jammu. He had fled from Kashmir, he came to Jammu, and this treaty was signed. Immediately, the forces were airlifted, and this is how the other part of the Kashmir was saved, and some people, some army, they were forcibly evicted from the area, whatever time it was possible. So, after that, as you know, Mr. Jawaharlal Nehru, he went to UNO, which was a big rather war. He went to UNO, and there UNO resolution was adopted. First, I like to tell you why what is this thing plebiscite, and what is this. In very short, I will tell you what is this UNO resolution, which is so many times people talk about different ways. It says very, very clearly that first Pakistan and its army plus Pakistani people who are in that region, they have to be evicted from that area, which people generally do not know what is this resolution. So resolution very, very clearly says, I have got this resolution with me, and you can see it on Google. It says the government of Pakistan should undertake
to use its best endeavors to secure, word is to secure the withdrawals from the state of Jammu and Kashmir of tribesmen and Pakistan nationals not normally resident therein who have entered into the state for purpose of fighting and to prevent any intrusion into the state and any furnishing of material aid those fighting in the state. That is it, which is very, very clear. The first thing they have to do is they have to vacate. Only then, what they have written in the resolution, only then after that, then Government of India should, when it is established that to the satisfaction of the Commission that they have withdrawn, only then a plebiscite will take place. Plebiscite means Janmat Sangrah. Janmat Sangrah will take place in the whole state, not only in Kashmir. And as you know today, we are holding elections in the J&K and more than 60% people are turning for the elections. That means that there is no problem as far as people are with India, as far as state is concerned. Here I may add that one American writer, Christine Fair, he has recently given, she has written a book, Fighting to the End, the Pakistani Way of War. And while she was addressing a press conference, one Pakistani student from USA, she asked her that the Pakistan scholar asked her to recall the 1948 resolution which promised plebiscite in Kashmir. He further demanded her to explain the role played by CIA in colliding with the interstate services of Pakistan to attack Soviet in Afghanistan. The reply of Fair left the Pakistani student stunned. The author raved him for questioning her without gaining accurate knowledge. Her reply to the queries raised by the scholar left him humiliated during the press conference. Fair completely exposed and gave a demolishing answer to both of his questions. Study your facts before you ever make such a fool out of yourself in the public. And that is the truth. We always, we talk about plebiscite, but we do not know the basic thing, what Pakistan has to do, and then after that only, what India has to do. Now, just I'll come after that regarding Article 370. And I may just add that my wife, she is from J&K. She is a resident of J&K state. I am from UP. Now, I like her to come and tell you few things about 370 and then her experience also. Would you like to come? आर्टिकल 370 जो पूरे मतलब इंडिया में नहीं है, वो खाली जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए बनाया गया था। और उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला वगैरह ने ये सब मिलके प्लान करके ही वहाँ किया था, जो कि आज वो हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो उसका ये पहले है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास डबल सिटीजनशिप है, एक तो J&K की है और दूसरी इंडिया की है। वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट के बिना कोई काम नहीं होता है।
मतलब वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको अपना स्टेट सब्जेक्ट अलग से बनवाना पड़ता है, जो कि हमें बाकी स्टेट्स में नहीं बनवाना पड़ता। और जम्मू कश्मीर का फ्लैग भी अपना अलग से है। जम्मू कश्मीर का जो पार्लियामेंट असेंबली है वो 6 सालों के लिए है, 6 इयर्स के लिए है, और बाकी पूरी इंडिया में 5 इयर्स के लिए है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें अलग कर देती हैं और इंडिया से। जबकि भारत के अन्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है, और जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी फ्लैग, जहाँ हमारी नेशनल की जो भी चीज़ें हैं जिनको हम सोचते हैं कि इनको अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे, तोड़ेंगे तो पनिशमेंट है, जो जम्मू कश्मीर में नहीं है। वहाँ रोज इंडिया का फ्लैग जलाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में पहले सुप्रीम कोर्ट के जो भी निकल होता था अध्यादेश वगैरह, वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं थे, लेकिन अब कुछ सालों से कुछ चीज़ें वहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट करके शुरू कर दी हैं। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित ही अध्यादेश बना सकती है, कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य में किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो ये महिला अपनी नागरिकता खो देती है, जम्मू का स्टेट सब्जेक्ट उसका खत्म हो जाता है। इसके विपरीत पीओके के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट ले सकता है और वहाँ वोटिंग कर सकता है। और 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आरटीआई नहीं है। वहाँ पे आप आरटीआई से कुछ भी, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो हम लोग किसी भी ऑफिस में जाके आरटीआई के थ्रू कुछ भी पूछ सकते हैं। इवन अभी केजरीवाल ने आरटीआई के थ्रू, मोदी ने एमबीए किया था और बीए किया है कि नहीं, उसके पास डिग्री है कि नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और गुजरात वाले यूनिवर्सिटी से पूछा गया था, जो कि फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनका जवाब दिया गया था। तो ये आप कुछ भी किसी ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं। कश्मीर की महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है, वहाँ पंचायत के कोई अधिकार नहीं है, लेकिन शायद ये अब पंचायतें वहाँ भी हो गई हैं, ये कुछ सालों से वहाँ ये अमेंडमेंट कर दिया गया है। कश्मीर में अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटीज में हैं, हिंदू और सिख, कश्मीर में, जम्मू में तो 80% 90% है और लद्दाख में उनके उतना है, लेकिन कश्मीर में, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलता। और 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग कोई जमीन नहीं खरीद सकते। ये और बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि ये 370 स्टेट से हटा दिया जाए और बिल्कुल उन लोगों को ये लगे कि हम लोग और इंडियंस में कोई भी फर्क नहीं है। हमेशा कश्मीर में लोग ना इंडिया को ये कहेंगे यू इंडियंस, मतलब वो इंडिया से कोई घूमने जाएगा, कोई जाएगा तो उसको वो अपना नहीं मानते। लेकिन अगर ये 370 ये अलग से हो जाए तो वहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा कि हम भी इंडिया के साथ ही जुड़ेंगे। और कश्मीर के लोग जैसे दूसरी स्टेट्स में भी जाते हैं तो वहाँ भी उन लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि वहाँ हमेशा झगड़े होते रहते हैं, कितने सालों से, 60 साल से यही हो रहा है। तो यहाँ कभी ये बात होती है वहाँ कर्फ्यू लगा तो हम सोचते हैं जम्मू में तो हमने ये बहुत कुछ देखा हुआ है, टीयर गैस की बात हो, कुछ हो, तो ये हमारा घर कुछ सिटी में था तो हमने तो टीयर गैस भी बहुत बार आंखों में सही हुई है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ ये शुरू से ही चली आ रही है। I would like to add more. 370, as we are talking, it is really difficult to abrogate it. The reason being, this was passed by the Constituent Assembly of the JNK, given power by the Constitution of India under Article 35A. So
Now that Constituent Assembly is no more, but for that they will have to go to Parliament, because Supreme Court and High Court of J&K, they have already given verdicts on this, that it cannot be amended, it cannot be changed. That is one of the reasons that is a constitutional cause. Now these days, as you are seeing, जो पत्थरबाजी हो रही है, this is daily in your papers. I'll just like to tell you कि कश्मीर में अब जो पत्थरबाजी पहले भी होती थी, ये पत्थरबाजी कराई जाती है, होती नहीं है। 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये ये दिए जाते हैं पत्थरबाजी करने के लिए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि ये जो लोग हैं वहाँ पे, they are not happy, they want India, they do not want to go in Pakistan. For your information, I have asked so many Kashmiris, they never want to go to Pakistan, and they know Pakistan यहाँ पे हम तो रूल करके भी कुछ नहीं हमारा फायदा देगा, तो they want independent state which they cannot get. अभी जो हाल की जो पत्थरबाजी है, आपको मालूम है कि बुरहान जो ही वॉज ए टेररिस्ट, 50 लाख का उस पर वार था, ही वॉज किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस. अब इनको मौका मिला. इसमें सबसे कट्टरपंथी हुर्रियत जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सैयद शाह गिलानी, ही इज द मेन पर्सन. वैसे तो और लोग भी हैं, लीडर्स हैं, बट ही इज द मेन पर्सन. अभी इन दिनों क्या हुआ है, जो मुझे खबर मिली, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. गिलानी ये चाहते थे कि सारी दुनिया को पता चले कि हमारा ये आदमी क्यों मार दिया. और उस आदमी ने, आपको शायद ये भी मालूम होगा कि आर्मी की वर्दी पहन के वो क्राइम करता था. आर्मी की वर्दी पहन के, क्योंकि उसका बाप भी ऐसे ही मारा गया था. जब ये मारा गया तो अब इनको ये मौका मिला, एक तो ये कि भाई पूरी दुनिया को बताएं कि ये हमारा आदमी, जो आदमी है हमारा, ये क्रिमिनल नहीं था, ये तो बहुत बड़ा लीडर था और लड़कों में बड़ा कामयाब भी था, ये यंग. दूसरी बात, सैयद अली शाह गिलानी की लड़की अभी कुछ साल पहले अमेरिका से पढ़ने के बाद शी वेंट टू कश्मीर. कश्मीर में she was not happy what her father is doing. इसने अपने एक इंडियन लड़के से, उसका नाम है अभिनंदन कौर, 28 साल का वो लड़का है, और ये रुबाना गिलानी 26 साल की लड़की है, जिसने अभी आके उस लड़के से बगैर घर वालों की मर्जी के शादी कर ली, और वो सेब का व्यापार करता है. उसके साथ वो, जहाँ पे हिंदू डोमिनेट एरिया है, दैन शी इज स्टेइंग विद हिम. तो इन्होंने एक फतवा भी जारी किया कि हम छोड़ेंगे नहीं, फना करेंगे. बट सिंस आपको पता है सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ इतनी हैं और वहाँ इतना ज़्यादा इंतज़ाम हो, उसका किया गया कि भाई यहाँ की किसी तरह का हिंदुओं के साथ तमाशा ना हो. हालांकि हिंदू अब वहाँ कम रह गए, ये भी मैं आपको बता दूँ. आपको पता ही है, करीब 5000 पंडित मारे फिर रहे हैं जगह जगह, और उनके घर वहाँ से या तो ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया, मार दिए गए, उनके साथ बड़े अत्याचार हुए. मेरी वाइफ की फैमिली भी, आधी फैमिली जम्मू रहती, अभी भी रहते हैं, आधी फैमिली श्रीनगर में रहती है, आधी फैमिली. मैं भी गया हूँ, कई बार मैं श्रीनगर गया हूँ. दे हैड टू फ्लेड. किसी तरीके से रात को किसी से कह हुआ के कुछ ट्रक का इंतजाम करके, वो भी किसी पुलिस अफसर को कॉन्फिडेंस में लेके, दे केम टू जम्मू. यानी जम्मू पूरा परिवार. 5 लाख. पार्डन? 5000 या 5 लाख? 5 लाख, सॉरी 5 लाख, यू राइट. तो अभी इसके बाद मैं आपको मौका दूंगा क्वेश्चन आंसर्स का, तो मैं थोड़ी सी बात उस पर और कह दूँ, फिर उसके बाद इफ़ यू नो आई एम वेरी हैप्पी, आप अच्छी बात जानते हैं. एनीवे, तो वो उसको एक मौका हो गया
कि उसको ये भी बदला दिया जा रहा है कि मेरी बेटी के साथ किसी हिंदू ने कैसे शादी कर ली। तो एक से कारण बनते चले जा रहे हैं। और ये मसला आपको ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजराइल के, जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीनियों पे जब वो पत्थर फेंकते थे कब्जा करने के लिए पैलेट्स गन, उन्होंने पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया इजराइल ने। उसमें क्या होता है कि जो छर्रा होता है, पैलेट को छर्रा बोलते हैं हिंदी में, वो जाके बॉडी में आपके कपड़े को चीरता हुआ बॉडी में घुस जाता है, जख्म भी कर देता है। सबसे बड़ी बात, उसका निशान नहीं जाता। तो और किसी की आंख में चला गया तो उसकी आंख फूट जाती है। और कोई आदमी, जैसे आप जानते हो, जो आज मरने का कारण केवल चोट नहीं होती। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कभी भी आप पोस्टमार्टम की, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे तो लफ्ज लिखा जाता है डेथ इज ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरीज। ये सब ये लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है कि आपको किसी ने चोट तो जितनी लगी सकी, जो शॉक होता है, शॉक, आपकी डेथ उस शॉक की वजह से होती है। तो शॉक एंड हेमरेज दो चीज़ें हैं। इसमें कश्मीरी, अब जो ये हमारे यहाँ चलाई गई हैं, they say about 60 people have died and more than 600 have been injured। ये अभी आपके हालात, आँख में चली गई, आँख फूट जाती है, आँख फूटी है लोगों, 100 of people blinded, उनकी आँख फूट के बेकार हो गई। अभी आपने खबरों में देखा होगा कि एक डेलीगेशन गया प्राइम मिनिस्टर के पास, हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि साहब इसे बंद कराइए, ये वाला काम अब नहीं होना चाहिए। और अभी आपको पता है 51 दिन की कर्फ्यू चली, 51 डेज कर्फ्यू इन कश्मीर। अभी भी एक आध जगह छोड़ के अब जाते हैं, 2 दिन पहले ख़त्म किया है, मंडे को वो कर्फ्यू ख़त्म हुआ। तो उनका पर्पस क्या है कि दुनिया में ढिंढोरे पीटने, ढिंढोरे में ही करने। अब जाके गवर्नमेंट ने ये तय किया कि पैलेट्स गन तो हम, जो ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी होगा, रेयर ऑफ द रेयर्स, तब हम चलाएंगे, अदरवाइज। अब उन्होंने चिली पाउडर के वो गन्स का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बगैर शक्ति के वहाँ कामयाब नहीं हो रहे थे। अच्छी बात ये निकल के आई कि वहाँ की चीफ मिनिस्टर ने भी इसको माना कि ये जो इनसे पत्थर फिकवाए जा रहे हैं, ये गलत फिकवाए जा रहे हैं, ये पत्थर नहीं फिकवाए जाने चाहिए। और इन लड़कों के हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इनके हाथों में कंप्यूटर दो। और इनके, फॉर योर इंफॉर्मेशन में और बता दूं कि जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं, इन्हीं के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बच्चों में किसी और कंट्री में पढ़ रहे हैं, कुछ के बच्चे दिल्ली पढ़ रहे हैं, पुणे पढ़ रहे हैं। देयर इज अ लिस्ट that you can also see on the website। आप उस पर चले जाएं तो आपको गूगल पे ये मिल जाएगा कि इन कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर के बच्चे कौन कहाँ पढ़ रहे हैं। ये भी बड़ा खुल के आ गया। तो उनका कहना है कि इन बच्चों को तो, अपने बच्चे तो ये रखते नहीं, या उनको पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूलों में, और इन बच्चों को आप पत्थर मारना सिखा रहे हैं। तो ये धीरे 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 हालात सुधर रहे हैं। अब 4 तारीख को, अब आने वाली 4 सितंबर को, एक डेलीगेशन होम मिनिस्टर के अंडर में ऑल पार्टी का जा रहा है, वहाँ समझाने के तरीका निकाल रहे हैं कि कश्मीर में किस तरीके से शांति हो चुके, कई लाख करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, लगातार हो रहा है। आपको टूरिस्ट वहाँ नहीं जा रहा। अमरनाथ यात्रा में, फॉर योर इंफॉर्मेशन, सबसे कम यात्री इस बार गया है, क्योंकि लोगों को डर था कि बिना वजह का वहाँ तमाशा था। तो लेट अस होप कि कश्मीर सुधरे, लेकिन कश्मीर के बारे में हमारी जानकारी भी होनी चाहिए। और इस जानकारी को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को, जो कि हम खुद नहीं जानते, बच्चों को भी हम नहीं बता पाए, बताइए। मेरा पर्पस कश्मीर के बारे में ये था। अब मैं थोड़ा आता हूँ बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान भी एक राजा या नवाब, ये उसका राज्य होता था।
बलूचिस्तान कोई पार्ट नहीं होता था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती फोर्सिबली जब ये इनको पाकिस्तान मिल गया, उसके बाद ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को कब्जा है। और बलूचिस्तान में शिया ज़्यादा रहते हैं, शियास की आबादी ज़्यादा है, और पाकिस्तान में सुन्नी ज़्यादा है। इन्होंने जानबूझ के वहाँ अत्याचार किए, शियास को वहाँ से भगाया कि किसी तरीके से हमारी आबादी बढ़े, सुन्नीस को वहाँ पे जगह जगह पे फंसाया और लगातार उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। वो लोग शायद आपने सुन लिया होगा या टीवी पे देख लिया होगा, आज वो लोग जब 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली से लाल किले से ये कहा उनके बलूचियों का हम उनके साथ हैं, तो अब वो भी खड़े हो गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हमको आज़ादी मिले, क्योंकि ये जगह हमारी है, ये जगह कहीं किसी भी तरीके से पाकिस्तान की नहीं है। गलतफहमी लोगों को शायद ये है कि ये पाकिस्तान का पार्ट था। नो, इट वाज नॉट। एंड उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इंडिपेंडेंट थे। ये जो उनके 4 प्रोविंसेस हैं, इसमें लगभग 40 से लेके 44% आबादी रहती है, जो आबादी बलूच की है, बलूच की। ये बलूच नहीं चाहते कभी पाकिस्तान के पास में। और इनमें लगभग 6.5 मिलियन लोग रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान इसको छोड़ना नहीं चाहता? एक जगह है सुई में गैस निकलती है, और ये गैस इतना भारी भंडार है, ये जगह जगह ये गैस जाती है, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है। बट आपको हैरानगी ये होगी कि केवल डिस्ट्रिक्ट उसमें 28 हैं, 4 प्रोविंसेस में, केवल 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये गैस इनको बलूच को मिलती है, बाकी गैस इनको नहीं मिलती। एंड देयर आर 28,000 विलेजेस इन बलूचिस्तान, आउट ऑफ विच 250 विलेजेस में केवल ये गैस पहुंची है, बाकी ये गैस वहाँ नहीं जाती। ये गैस पाकिस्तान में दी जाती है। और अब मिनरल्स बढ़े हैं, मिनरल्स, इसको उसकी वजह से ये मतलब पाकिस्तान ना इसको छोड़ना चाहता है, और उसका कोई फ़ायदा इनको नहीं दे रहा। वो गैस का फ़ायदा भी पाकिस्तान देता है इनको, मामूली सी थोड़ी सी मदद, थोड़ी बड़ी मामूली मदद, कोई प्रोग्रेस इस स्टेट को नहीं करने देता ताकि ये फिर उठना जाए, इस लायक ना हो जाए। और जबकि इसमें कुछ लोगों ने, थोड़ा नहीं, इन लोगों ने बड़ी बड़ी मेहनत करके बड़ा अपने साथ लोगों को मिला के इन्होंने एक तरह से विद्रोह किया, मारे गए। फिर कुछ इसमें से कुछ लोग दे वेंट टू अफगानिस्तान, भाग गए, और एक आध को इन्होंने मौका भी दे दिया कि साहब उन्हीं में से एक को गवर्नर भी बना दिया। आई वाज जस्ट सेइंग कि नवाब अकबर बुख्ती को इन्होंने एक बार गवर्नर भी बना दिया। फिर उसके बाद इन्होंने जितना हो सका इस जगह को लूटा, लोगों को परेशान किया। इंटरेस्ट क्या है इसमें? अब इंटरेस्ट केवल उन्हीं का नहीं रह गया है, यूएसए का भी इंटरेस्ट है, देन इंडिया का तो इंटरेस्ट है ही, चाइना का इंटरेस्ट हो गया। क्योंकि चाइना को इन्होंने ग्वादा, एक पोर्ट है, ग्वादा पोर्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट, उसमें चाइना क्या कर रहा है कि उसके अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत बड़ी एक लाइन खींच रहा है। उसकी वजह से, चाइना के इस वजह से इंडिया को और यूएसए दोनों को खतरा है, इंक्लूडिंग ईरान। तो ईरान का भी इंटरेस्ट है, इनका भी इंटरेस्ट है। एंड इसके अलावा ईरान को एक वो है जो थ्रेट टू छाबार, एक उनका छाबार